بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنل فریدی حمید کی کہانی بغور سنتا رہا۔ جب وہ لڑکی کو ہسپتال لے جانے والے حصے پر پہنچا تو اس نے اسے ٹھہرنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، بس اب صرف اتنا بتا دو کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی؟ زندہ ہے لیکن ابھی تک ہوش میں نہیں آئی۔ بھلا تم ناصر مرزا کی مدد کیسے کرو گے؟ ہمت مردہ مدد خدا۔ او تو تم اسے اقدام خودکشی کا کیس نہیں بننے دو گے؟ ناصر مرزا بری طرح گڑگڑا رہا تھا۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ حمید محسوس کر رہا تھا کہ وہ بہت اچھے موڈ میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے حمید کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم فکر نہ کرو، میں ڈاکٹر سعید کو اس پر آمادہ کر لوں گا کہ وہ اسے مرگی کے کیس کی حیثیت سے رجسٹر کر لے۔ تھینک یو باس۔ حمید نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں اور پھر بولا، آپ اتنے مہربان کیوں ہیں؟ ناصر مرزا کے گھرانے سے ہمارے قدیم تعلقات ہیں۔ اپنے ان دونوں کے بارے میں کیا معلوم کیا؟ باپ بیٹی، سفارت خانے کا آفیسر ہے۔ لڑکی اردو پڑھنے کی بے حد شائق ہے۔ مقتول آرتھر چیمپئن اس کا کلاس فیلو رہ چکا ہے۔ دونوں میں گہری دوستی تھی۔ کیا اردو پڑھنے کے شوق کا تذکرہ بھی کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ حمید نے پوچھا۔ اردو میں تم مجھ سے زیادہ قابل ہو۔ ٹیوٹر کی حیثیت سے تمہارا تذکرہ کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ تم اسے اردو پڑھاؤ گے؟ لیکن میں تو روزہ فکر نہ کرو، اگر وہ بچ بھی گئی تو کافی عرصہ تک بستر سے اٹھ بھی نہ سکے گی۔ کیوں؟ جس خواب آور دوا کا تذکرہ تم نے کیا تھا وہ ایسی ہی ہے۔ کیا اب کسی نتیجے پر پہنچے ہیں؟ ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اب کسی خاص نتیجے پر پہنچے بغیر ختم بھی کرو۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، اب ہمیں سونا چاہیے۔ کتنی رات گزر گئی؟ حمید نے بھی اس سارے کارنامے کو اپنے ذہن سے نکال دینے کی کوشش شروع کر دی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس کہانی میں ایک لڑکی کا مزید اضافہ ہو گیا تھا اور وہ اردو پڑھنے کی شائق تھی۔ اگر حمید نے اسے دیکھا نہ ہوتا تو شاید اردو پڑھانے کا خود بھی اتنا شائق نہ ہوتا کہ دیکھنے والے اسے بے خوابی کا مریض سمجھ بیٹھتے۔ وہ اپنی خوابگاہ میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر ایک بار ڈائل گھمایا۔ دوسری طرف سے ریسیور اٹھانے کی آواز آئی۔ میر تقی میر نے پریشان کر رکھا ہے، حمید نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ میں اس وقت اردو پڑھانا چاہتا ہوں، سو جاؤ۔ دوسری طرف سے فریدی کی بھرائی ہوئی آواز آئی، بور مت کرو، اور پھر سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سنائی دی۔ حمید نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور بستر پر بیٹھ کر سوچنے لگا۔ پتہ نہیں روزہ کن حالات سے گزر رہی ہوگی۔ اس نے ہسپتال فون کر کے اس کے بارے میں معلوم کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، لیکن اب سوچ رہا تھا کہ کم از کم ناصر مرزا سے فون پر ضرور رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ اس نے گھر کی لائنوں کا پلگ فون سے نکال کر ڈائریکٹ لائن کا پلگ لگا دیا اور ناصر مرزا کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی جواب ملا تھا، لیکن جواب دینے والے نے ناصر مرزا سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کوئی اور نمبر بتایا تھا۔ حمید نے وہ نمبر بھی ڈائل کیے اور ناصر مرزا کا نام لیا۔ کچھ دیر بعد بھرائی ہوئی سی آواز آئی، کون ہے؟ مسٹر ناصر مرزا، ہاں ہاں میں ہی بول رہا ہوں، تم کون ہو؟ کیپٹن حمید۔ او زندہ باد پیارے، زندہ باد۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں یہ سب کچھ نشے میں بک رہا ہوں۔ تم بہت پیارے آدمی ہو۔ روزہ کا کیا حال ہے؟ وہ ہوش میں آ گئی ہے۔ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ اسے 15-20 دن تک آرام کرنا چاہیے، بستر سے بھی نہ ہلے۔ اور سنو، معاملہ مرگی کے دورے پر ٹل گیا ہے۔ واقعی تم حیرت انگیز ہو، ڈاکٹر نے مجھ سے کہا۔ مرزا صاحب اب فکر نہ کیجیے، اکثر مرگی کے دورے خطرناک بھی معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔ کیپٹن حمید، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ کرنل صاحب سے بھی آپ لوگوں کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ میں کمال سے نہیں کہنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیوں اس کے سامنے کسی معاملے میں بھی زبان نہیں کھلتی، حالانکہ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹا ہے۔ میرے لائق اور کوئی خدمت؟ گھر پڑے کیا کر رہے ہو؟ یہاں آ جاؤ، اس وقت میں اپنی بہشت میں ہوں۔ یہ جنت میرے والد حضور نے تعمیر کرائی تھی۔ پتہ بتائیے۔ رافلہ منزل۔ او، وہ آپ کی ہے؟ اوہو، عرصہ سے خواہش تھی، بڑے تذکرے سنے ہیں اس کے۔ یہ جنت میرے والد حضور نے اپنی محبوبہ کے لیے تعمیر کرائی تھی۔ اس وقت اس کا نام گل نسرین تھا۔ نسرین دراصل ان کی محبوبہ کا نام تھا۔ آپ نے نام کیوں بدل دیا؟ نہ وہ خود رہے اور نہ وہ نسرین صاحبہ۔
میں نے کہا میں اب کیوں نہ اسے اپنی محبوبہ کے نام سے منسوب کر دوں۔ یہ رافلہ اب کی ہاں یہ میری محبوبہ ہے۔ ذرا عجیب سا نام ہے، نام ہی کی طرح وہ خود بھی عجیب ہے۔ تم باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہو، آنا ہو تو آج کا پاسورڈ فرزین ہے۔ پاسورڈ؟ ہاں، تمہیں حیرت کیوں ہے؟ یہ جرم تو نہیں ہے کیپٹن حمید، میں نہیں چاہتا یہاں ہر قسم کے لوگ پہنچ سکیں، لہذا میں نے داخلے کے لیے پاسورڈ سسٹم رکھا ہے، اور یہاں تمہیں بہت اونچے لوگ ملیں گے اور تمہیں آگاہ کیا جاتا ہے کہ تم ان سے یکساں سلوک کرو گے۔ رافلہ منزل میں سب برابر ہیں، میں ابھی آیا، حمید نے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ گھڑی 1 بجا رہی تھی۔ اس نے بڑی تیزی سے لباس تبدیل کیا اور کمرے سے نکل کر برآمدے کی طرف چل پڑا۔ گاڑی باہر ہی کھڑی ہوئی ملی۔ جیسے ہی اس کے قریب پہنچا اندر سے آواز آئی، تشریف رکھیے جناب۔ حمید بھونا کر رہ گیا۔ اب میری کالیں ٹیپ کرتے ہیں، وہ پھاڑ کھانے کے انداز میں بولا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آج کا پاسورڈ اس طرح معلوم ہو گیا، فریدی نے پرسکون لہجے میں کہا۔ آپ ہی کی طرح مجھے بھی رافلہ منزل دیکھنے کا عرصہ سے اشتیاق تھا۔ بیٹھ جائیے، اب تو ہرگز نہ جاؤں گا۔ ضد نہ کرو، وہاں تنہا جانے کا میرے پاس کوئی جواز نہیں، ورنہ۔ حمید نے اس کے برابر بیٹھنے کی بجائے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور دم سے بیٹھ گیا۔ گاڑی پھاٹک سے گزرتی چلی گئی۔ حمید کا غصہ ابھی تک فرو نہیں ہوا تھا، بس وہ سوچے جا رہا تھا کہ فریدی نے اس کی پرائیویٹ کال کیوں سنی۔ دماغ ٹھنڈا ہوا یا نہیں؟ اگلی سیٹ سے فریدی کی آواز آئی۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی مطلب تو ضرور رہا ہوگا، کیونکہ میں تمہاری طرح وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں۔ اس بار فریدی کے لہجے کی سنجیدگی نے اسے آہستہ آہستہ ٹھنڈا کر دیا، لیکن وہ سختی سے ہونٹ پر ہونٹ جمائے خاموش بیٹھا رہا۔ بولتے رہو ورنہ مزمحل ہو جاؤ گے، فریدی نے کچھ دیر بعد کہا۔ برا ماننے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری کم از کم ایک کال ضرور ٹیپ کرنا چاہتا تھا، اور وہ کال ناصر مرزا کے لیے ہوئی۔ حمید کچھ نہ بولا، فریدی بھی خاموش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حمید نے کہا، آپ صرف پاسورڈ معلوم کرنا چاہتے تھے، کیا آپ براہ راست ناصر مرزا سے نہیں معلوم کر سکتے؟ کیا آپ اس سے خواہش نہیں ظاہر کر سکتے تھے کہ آپ اس جنت کو دیکھنا چاہتے ہیں جو اس کے باپ نے اپنی محبوبہ کے لیے بنوائی تھی؟ نشے میں بکواس کر رہا تھا، یہ عمارت اسی نے بنوائی ہے، بہرحال آپ اس کی اجازت سے وہاں جا سکتے تھے۔ بکواس مت کرو، جو میں مناسب سمجھتا ہوں کرتا ہوں۔ رافلہ منزل ایک بہت بڑی عمارت تھی، کئی ایکڑ کے رقبے میں ایسی ہی 4 دیواری سے گھری ہوئی عمارت جیسی قدیم زمانے کے قلعوں کے گرد تعمیر کی جاتی تھی۔ داخلے کا پھاٹک بھی خاصے تزکو احتشام کا مظہر تھا۔ 2 باوردی اور مسلح سنتری ہر وقت پہرے پر رہا کرتے۔ فریدی نے پھاٹک کے سامنے گاڑی روکی، ایک سنتری ان کے قریب آیا۔ حمید نے کھڑکی سے منہ نکال کر پاسورڈ دہرایا۔ کیپٹن حمید سر؟ سنتری نے پوچھا۔ کرنل فریدی اینڈ کیپٹن حمید، حمید بولا۔ صرف کیپٹن حمید جناب، ہمیں آپ کے لیے ہدایت ملی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حمید کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ دفتن فریدی اس کی طرف مڑ کر بولا، نہیں ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ حمید نے اس کے لہجے میں کوئی خاص بات محسوس کی، لیکن فوری طور پر اسے مانی نہ پہنا سکا۔ وہ چپ چاپ گاڑی سے اتر گیا۔ پھر اسی سنتری کی رہنمائی میں وہ پھاٹک سے گزرا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے مغل طرز کے کسی باغ میں قدم رکھا ہو۔ سنتری کی حد ختم ہو چکی تھی اور اب ایک مرصع لباس خادم اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ حمید کا خیال تھا کہ ناصر مرزا نے اس کی آسانی کے لیے اس خادم کو وہاں بھیجا ہوگا۔ اس طویل و عریض 4 دیواری کے اندر جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی خوبصورت عمارتیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ روشنی کا ایسا اچھا انتظام تھا کہ شاید ہی وہاں کا کوئی گوشہ تاریک رہا ہو۔ چاروں طرف سرسبز قطعات کے درمیان سرخ بجری والی روشوں کے جال بچھے نظر آ رہے تھے۔ خادم اسے درختوں کے ایک جھنڈ سے گزارتا ہوا ایسی جگہ لایا کہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مصنوعی جھیل تھی جس میں کئی خوبصورت کشتیاں تیر رہی تھیں۔ پوری جھیل پر ایسی روشنی تھی کہ دن کا گمان گزرتا تھا۔ خادم اسے کنارے سے لگی ہوئی ایک کشتی کے قریب لایا۔ اس کشتی میں ناصر مرزا بیٹھا تھا۔ اس کے قریب سرخ رنگ کی ایک بڑی سی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ آؤ آؤ میرے دوست، میں تمہارا منتظر تھا۔ ناصر مرزا نے اپنی نشے میں ڈوبی ہوئی آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ حمید کشتی میں اتر گیا۔ وہ اس کے بوجھ سے ڈولی تھی۔
اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے حمید نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ خادم اب مؤدبانہ انداز میں خشکی پر کھڑا تھا۔ چل لو، ناصر مرزا نے اس کی طرف ہاتھ ہلا کر کہا اور وہ کشتی میں آ کر بیٹھا۔ پھر پتوار سنبھال لیے۔ کشتی آہستہ آہستہ گہرے پانی میں تیر گئی۔ حمید نے ناصر مرزا کو بتایا کہ فریدی باہر موجود ہے۔ بن بلائے مہمانوں کو برداشت کرنا میرے بس سے باہر ہے کیپٹن حمید۔ ناصر مرزا کا لہجہ خشک تھا۔ ایسی بے مروتی کی توقع حمید کو نہیں تھی۔ وہ تو سمجھا تھا کہ فریدی کا نام سنتے ہی ناصر مرزا خود ہی استقبال کے لیے دوڑا جائے گا۔ کشتی آہستہ آہستہ تیرتی رہی۔ دوسری کشتیوں پر بھی لوگ نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے باتیرے حمید کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ کوئی کسی وزارت کا سیکریٹری تھا، کوئی کسی محکمہ کا ڈائریکٹر جنرل، کچھ غیر ملکی بھی دکھائی دیے۔ تم کون سی پیتے ہو کیپٹن؟ ناصر مرزا نے کچھ دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا اور حمید کے جواب پر حیرت زدہ نظر آنے لگا۔ دفتن چاروں طرف تیز قسم کی موسیقی گونجنے لگی۔ الیکٹرک گٹار پر بڑی خوشگوار دھن چھیڑ دی گئی تھی۔ ناصر مرزا اپنی سرخ رنگ کی بلی کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس رنگ کی بلی میرے لیے عجوبہ ہے، حمید بولا۔ یہ رافیلہ ہے؟ رافیلہ یعنی کہ ہاں، اس کے نام سے منسوب ہے یہ جگہ، لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ محبوبہ کے نام سے ہے۔ ناصر مرزا کے قہقہے نے اسے جملہ پورا نہ کرنے دیا۔ کیپٹن حمید، یہی ہے میری محبوبہ۔ کہیں کوئی سبز رنگ کی ملے تو مجھے بھی دلوا دیجیے۔ اس کی عادت ہے کہ بوقت ضرورت اپنی کھال بدل دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی تم اسے دوسرے رنگ میں بھی دیکھو۔ حمید محسوس کر رہا تھا کہ اس وقت وہ ایک بے فکرے کے سے انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ حمید نے روزہ کا ذکر چھیڑنا چاہا، لیکن ناصر مرزا ہاتھ اٹھا کر بولا، غیر ضروری باتیں نہیں۔ اس جنت میں سارے سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تم بھی یہ نہ سوچو کہ فریدی اس وقت پھاٹک پر کھڑا احمقوں کی طرح سر کھجا رہا ہوگا۔ آپ کی کشتی میں کوئی لڑکی نہیں ہے، حالانکہ دوسری کشتیوں میں نظر آ رہی ہے۔ میری محبوبہ کسی عورت کا وجود برداشت نہیں کر سکتی، تو آپ اپنی کشتی پر تنہا ہوتے ہیں۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ میں تنہا کب تھا؟ رافیلہ تھی میرے ساتھ۔ فلمی گانوں کی نقل اتار سکتی ہے یا نہیں؟ کیا تم میرا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہو؟ چھلانگ لگا دوں گا کشتی سے اگر اپ نے میری نیت پر شبہ کیا۔ میں نے اتنی محبت آج تک اور کسی سے نہیں محسوس کی جتنی اب سے کر رہا ہوں۔ ناصر مرزا نے اس طرح اس کی طرف دیکھا جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ ہو۔ موسیقی کی دھن بدل گئی تھی۔ غالباً چاچا قسم کی کوئی پرشور موسیقی تھی، اور اب اس میں کئی مزید ساز شامل ہو گئے تھے۔ آپ کا آرکسٹرا بھی شاندار ہے، حمید تھوڑی دیر بعد بولا۔ سب کچھ شاندار ہے، لیکن کسی طرح بھی سکون قلب حاصل نہیں۔ آپ بلی بدل دیجئے۔ کتنے عرصہ سے ہے آپ کے پاس؟ تم سے مطلب؟ ناصر مرزا جھنجھلا گیا۔ آپ کے بھلے کو کہہ رہا تھا۔ آپ بگڑ گئے۔ بور مت کرو کیپٹن حمید۔ حمید کچھ نہ بولا۔ اس کی نظر قریب سے گزرنے والی ایک کشتی پر پڑ گئی تھی، اور اس نے متحیرانہ انداز میں اپنے ہونٹ سکوڑی تھے۔ اسے اس کشتی میں وہی لڑکی دکھائی دی تھی جس کے متعلق فریدی نے اسے بتایا تھا کہ وہ اردو پڑھنا چاہتی ہے۔ اس نے سوچا کیا آرتھر کی موت میں ناصر مرزا ہی کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ناصر مرزا روزہ کی نگرانی کرتا تھا، اور روزہ اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے پبلک مقامات پر بھی ایسی حرکتیں کر گزرتی تھی جو اس کے شایان شان نہیں تھیں۔ آرتھر سے غالباً وہ اس کی لاعلمی میں ملتی تھی، اور آرتھر ہائی سرکل کے مینیجر سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا تھا۔ وہ لڑکی مجھے گھور رہی ہے، دفتن حمید نے خوفزدہ لہجے میں ناصر مرزا سے کہا۔ کون لڑکی؟ ناصر مرزا چونک پڑا۔ حمید نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ او، وہ کلارا ہے، بڑی واہیات کلارا ہے۔ پچھلے سال میں نے ایک کلارا دیکھی تھی، وہ تو ایسی نہیں تھی۔ ناصر مرزا اپنی بلی کو گھورے جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس پر کلارا کے تذکرے کا اثر دیکھنا چاہتا ہو۔ اتنے میں وہ کشتی قریب آ گئی۔ حمید نے اس غیر ملکی کو بھی پہچانا جو اس لڑکی کے بعد آرتھر کے مکان میں داخل ہوا تھا۔ ہیلو مرزا۔ غیر ملکی نے ناصر مرزا کو مخاطب کیا۔ ہیلو ڈیل، تم کچھ بجھے بجھے سے نظر آ رہے ہو۔ نہیں، ایسا تو نہیں۔ ایک بہت زندہ دل آدمی میرے پاس موجود ہے۔ بوڑھا بھی حمید کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، کچھ جانی پہچانی سی شکل ہے۔ یہی تو خاص بات ہے اس شکل میں، حمید نے مسکرا کر کہا اور جیب سے تمباکو کی ڈبیا نکال کر پائپ بھرنے لگا۔ دونوں کشتیاں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔
दफतन लड़की ने नासिर मिर्जा से कहा, इस जिंदा दिल आदमी को हमारे पास भेज दो, हम बूढ़ हो रहे हैं, अगर इस शरीफ आदमी को कोई एतराज ना हो। नासिर मिर्जा हमीद की तरफ देखता हुआ बोला। हमीद पाइप सुलगा रहा था। मुझे क्या एतराज हो सकता है मिर्जा साहब? हमीद ने होंठों से पाइप निकाल कर कहा, खुशी होगी अगर आपके मेहमानों को इंटरटेन कर सकूं। नासिर मिर्जा के इशारे पर खादिम ने कश्ती दूसरी कश्ती से मिला दी और हमीद इस पर उतर गया। खुश आमदीद। लड़की मुस्कुराई। शुक्रिया। हमीद ने मुअम्मर आदमी की तरफ मुसाफहा के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, कैप्टन साजिद हमीद, रुपेन डील, और ये कलारा डील है मेरी बेटी। हम गालिबन पहले भी मिल चुके हैं। हाँ, हमीद ने नासिर मिर्जा की कश्ती की तरफ देखते हुए कहा, जो अब उनसे काफी फासले पर थी, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा था। दिन की बात है, हम आर्थर चैंपियन के मकान पर मिले थे, लेकिन इस वक्त वहां इसकी लाश मौजूद नहीं थी। ओ खुदा की पनाह, ये जिक्र क्यों निकल आया? रुपेन डील ने कलारा की तरफ देखकर कहा। कोई बात नहीं डैडी। कलारा ने ठंडी सांस ली। वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, वक्तन फवक्तन याद आता ही रहेगा। मुझे बेहद अफसोस है। हमीद ने अपने चेहरे पर गमनाक तासुर पैदा करते हुए कहा। ओ नहीं, भूल जाओ, मैं हंसना चाहती हूं। लड़की जल्दी से बोली। तुम्हारे साथ जो ऑफिसर था वो मेरा चीफ था, बहुत नर्म दिल और मेहरबान आदमी है। बड़ा अजीब था वो। हमीद कबाब होकर रह गया, कुछ बोला नहीं। दफतन बूढ़े ने कहा, मैं तो अब थक गया हूं, मैं अभी कुछ वक्त और जेल में रहना चाहती हूं। कलारा ने कहा, मैं बार में बैठूंगा, तुम वहीं आ जाना। कश्ती किनारे जा लगी। बूढ़ा उतर गया। अब हमीद और लड़की तन्हा रह गए। कश्ती चलाने वाला तो ऐसा लग रहा था जैसे गूंगा और बहरा हो। यहाँ की पुलिस बड़ी शाइस्ता है। तुम्हारे चीफ ने मुझसे कुछ भी तो नहीं पूछा? कलारा बोली। मैंने भी तो कुछ नहीं पूछा। हाँ, तुमने भी नहीं पूछा। फिर तुम चीफ ही की तारीफें क्यों किए जा रही हो? तुम्हें तो मैं अभी जानती ही नहीं, और इसे कितने साल से जानती हो? ओ, क्या बताऊं, बड़ी अजीब शख्सियत थी। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसे साल से जानती हूं। जिंदगी के हर मोड़ पर वो मुझे नजर आया हो। प्लीज मिस डील, बस। क्या मतलब? जहां इस शख्स का तज़किरा होता है वहीं याद धमकता है, और मैं इस वक्त इसकी मौजूदगी कतई पसंद न करूंगा। आखिर क्यों? वो औरतों से डरता है और मुझे भी डराता रहता है। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे अभी पिछले ही साल की बात है, एक औरत ने कांधे पर हाथ रख दिया था। वो तर से गिरे और बेहोश हो गए। 3 दिन अस्पताल में पड़े रहे थे। कलारा हंस पड़ी और फिर इसे मुंह चढ़ाकर बोली, ओ, तुम बड़े जियाले हो, इसमें कोई शुबा नहीं। देखो तुमसे कितने मजे से गुफ्तगू कर रहा हूं। हकलाया हूं एक बार भी? ओ, तो क्या तुम्हारा चीफ? हाँ, औरतों से गुफ्तगू करते वक्त बुरी तरह हकलाता है, और तुम समझ रही हो कि अज़रा मेहरबानी तुमसे कुछ नहीं पूछा था। अच्छा बस खत्म करो, अब मैं तुम्हारे बारे में गुफ्तगू करूंगी। ना जाने क्यों हमीद को झरीरी सी आई। वो यकबैक संजीदा हो गया। इसने सोचा क्यों नाकाम की बातें की जाएं। रोज़ा इसके जहन में खटक रही थी। इसने सोचा मुमकिन है कि ये लड़की इसके बारे में कुछ बता सके। मिर्जा के दोस्त अजीब व गरीब हैं। कुछ देर बाद इसने कहा, क्यों, हम में कौन सी अजीब बात नजर आई? लड़की चौंक कर बोली, तुम्हारी बात नहीं, मिर्जा के साथ मैंने एक अजीब व गरीब लड़की देखी है। ओ, वही अपसाइड डाउन है ना? अजीब। इधर गुस्सा आया और उधर वो सर के बल खड़ी हो गई। अक्सर लोगों की ज़बानी इसके हुस्न की भी तारीफ सुनी है, लेकिन क्या तुम इसे हसीन कह सकती हो? पता नहीं, मैंने इसे कम ही देखा है। मेरा ख्याल है कि तुम इससे कहीं ज्यादा हसीन हो। जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे गालों में खफीफ से गड़े पड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई फाख्ता पुर से उड़ गई हो। बड़ी अजीब तशबीह है। तशबीहात का बादशाह हूं, लेकिन क्या वो लड़की पागल नहीं है? तुमने इस लड़की का जिक्र क्यों निकाला है? मिर्जा इसकी वजह से बहुत नर्वस रहता है। इसके किसी दोस्त की लड़की है। कलारा बोली, आज मैंने इसे हाई सर्कल में सर के बल खड़े देखा था। मैं कहती हूं, क्या तुम उसके तज़किरे के लिए इस कश्ती पर आए थे? मैं माफी चाहता हूं मिस डील, दरअसल हमारी जिंदगियां बोरियतों ही में बसर हुई हैं। मैं डर रहा था कि कहीं आर्थर चैंपियन का जिक्र ना निकल आए, इसलिए इधर उधर की हाँक रहा था।
जब तक कातिल हाथ न आ जाए हमारे जहन उलझे रहेंगे। और क्या वो हार्ट फेलियर का केस नहीं हो सकता? नहीं मिस डील, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी गर्दन की हड्डी तोड़ी गई थी। किसी अचानक हादसा की बिना पर उसकी मौत वाक़ई नहीं हुई। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कैप्टन। मैं इसे बचपन ही से जानती थी। वो ऐसा तो नहीं हो सकता था कि कोई इसकी गर्दन आसानी से तोड़ सकता। तुम उसके किसी दुश्मन से वाकिफ हो? नहीं कतई नहीं। वो ताकतवर जरूर था लेकिन झगड़ालू नहीं। यहां वो कब से मुकीम था? गालिबन 3-4 साल से। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि वो यहां है। हम लोग तो 4 माह कबल यहां पहुंचे हैं। बस अचानक एक जगह इससे मुलाकात हो गई थी। वो क्या करता था? ट्यूबवेल लगाने वाली एक कंपनी में इंजीनियर की हैसियत से काम कर रहा था। मैं इसकी मौत पर बेहद मगमूम हूं। बहुत अच्छा दोस्त था। डैडी को भी गहरा सदमा पहुंचा है। फरीदी ने अपनी कार जहां पार्क की थी वहीं खड़ी रखी। खुद भी अंदर ही बैठा सिगार पीता रहा। फाटक के पहरेदारों का रवैया गैर मुतलकाना था। ऐसा लगता था जैसे इसकी कार की मौजूदगी उनके लिए कोई मानी ना रखती हो। छोटी सुई 3 पर थी और बड़ी सुई 12 पर। फरीदी ने इस पर उछलती हुई नजर डाली और फिर फाटक की तरफ देखने लगा। ठीक इसी वक्त एक गाड़ी फाटक से बरामद होकर लिंकन की तरफ बढ़ती चली आई और करीब पहुंचकर उसके ब्रेक चरचराए। इसके हेडलैम्प्स की रोशनी पहले ही फरीदी के चेहरे पर पड़ी थी और उसने मुंह फेर लिया था। कर्नल मियां, गाड़ी से नासिर मिर्जा की भराई हुई सी आवाज आई। मैंने ये जन्नत बेफिक्रों के लिए तामीर की है, तुम जैसे बाउसूल आदमियों के लिए नहीं। वैसे अगर अब तुम अंदर जाना चाहो तो मुझे कोई एतराज ना होगा। तुम्हारा असिस्टेंट इस वक्त एक खूबसूरत लड़की के साथ झील में तैर रहा है। इनायत का शुक्रिया, फरीदी ने नर्म लहजे में कहा। मैं जरूर जाऊंगा। और हाँ सुनो, किसी बड़ी शख्सियत से मरूब ना होना। सीना तान कर चलना। मेरी जन्नत में कोई किसी से अफजल नहीं है। पासवर्ड दोहराते हुए गाड़ी समेत अंदर चले जाओ। इसके बाद इसकी गाड़ी फराटे भरती हुई एक तरफ निकली चली गई थी। फरीदी हसब हिदायत चहार दीवारी के अंदर पहुंचा। एक जगह बहुत सी कारें पार्क थीं। लिंकन भी वहीं खड़ी करके वो एक ऐसी इमारत की तरफ बढ़ा जहां सबसे ज्यादा रोशनी नजर आ रही थी। करीब पहुंचने पर ट्विस्ट की मौसीकी सुनाई दी। ये एक बहुत बड़ा हाल था। यहां मुताद्दिद जूड़े ट्विस्ट कर रहे थे। हाल के एक गोशे में बार थी जहां कई मुअम्मर लोग स्टूलों पर बैठे शराब पी रहे थे। फरीदी को यहां ज्यादातर जानी पहचानी सूरतें नजर आईं, लेकिन वो खुसूसियत से किसी तरफ मुतवज्जे नहीं था। रक्स की मौसीकी बतदरीज तेज होती जा रही थी और रक्कास जूड़े गोया आपे से बाहर हो रहे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे वो बरक़ी कुव्वत से चलने वाली मशीनों में तब्दील हो गए हों। ठीक इसी वक्त कैप्टन हमीद भी कलारा के साथ हाल में दाखिल हुआ और वो दोनों भी रक्कासों के साथ शामिल हो गए और इसी रफ्तार से शामिल हुए जिस रफ्तार से इस वक्त रक्स जारी था। फरीदी के होंठों पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट नजर आई। फिर मौसीकी नुक्ता उरूज पर पहुंचकर थम गई। बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ जैसे जमीन की गर्दिश रुक गई हो। एक पल के लिए कब्रिस्तान का सा सन्नाटा छा गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग ऊंची आवाजों में गुफ्तगू करने लगे और ठीक इस वक्त लाउड स्पीकर से आवाज आई, कर्नल फरीदी प्लीज, आपकी फोन कॉल है। फरीदी बार के काउंटर की तरफ देखने लगा। फोन वहीं रखा था और गालिबन माइक भी काउंटर के पीछे था। रिसीवर काउंटर पर पड़ा नजर आया। फरीदी सुस्त कदमों से चलता हुआ काउंटर के करीब पहुंचा। हेलो, फरीदी स्पीकिंग। इसने रिसीवर उठाकर माउथ पेस में कहा। मैं नासिर मिर्जा हूं। दूसरी तरफ से आवाज आई, फरमाइए। ये नामुमकिन है कि कैप्टन हमीद ने तुम्हें रोजा के बारे में ना बताया हो। आपका ख्याल दुरुस्त है। रोजा हस्पताल में नहीं है। इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। डॉक्टर ने कहा था कि वो कम अज कम 15 दिन तक बिस्तर से हिले भी नहीं। मुझे तफसीलात का इल्म नहीं। हस्पताल में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई। तो फिर क्या कैप्टन हमीद वहां मौजूद है? जी हां। जरा इसे फोन पर बुलाओ। मैं अच्छों के लिए अच्छा हूं और बुरों के लिए बुरा। फरीदी की पेशानी पर शिकने नजर आए और उसने अच्छा कहकर रिसीवर काउंटर पर डाल दिया। फिर इस आदमी से हमीद को कॉल करने के लिए कहा जो माइक के सामने बैठा हुआ था। हमीद ने हैरत से फरीदी को देखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन फरीदी ने फोन की तरफ इशारा किया। इसके चेहरे पर पाए जाने वाले आसार खुशगवार नहीं थे। हमीद ने कॉल रिसीव की और ज्यादातर हैरत का इजहार करता रहा। फिर गुस्सीले लहजे में बोला,
मिर्ज़ा साहिब, मैं किसी ऐसी लड़की पर नज़र डालना भी अपनी तौहीन समझता हूँ जिसका कोई दावेदार पहले से मौजूद हो। और इस जुमले के इख्तिताम पर उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। खामखा सर हो रहा है ये शख्स, वो फरीदी की तरफ देखकर बोला। फरीदी दूसरी तरफ मुँह फेर कर सिगार सुलगाने लगा। अब से क्या कहा था इसने फरीदी को फिर मुखातिब किया। इसके अलावा और सभी कुछ कह दिया था कि इसके गायब हो जाने की जिम्मेदारी मुझ पर है। हाँ, मरदूद कहता है कि तुमने इसे ब्लैकमेल करके कहीं और पहुंचा दिया है। बस तो फिर सफाई पेश करने की तैयारी करो। फरीदी ने खुश्क लहजे में कहा। सफाई जरूर। इसके सर पर जो थोड़े से बाल बाकी बच्चे हैं उनके लिए बार्बर तक कहलाने को तैयार हूं। बच्चों की सी बातें न करो, जरा अपने आसपास की भीड़ का भी जायजा लेने की कोशिश करो। ये कौन लोग हैं? बहुत ऊंचे ऊंचे लोग, हमीद हिकारत आमेज लहजे में बोला। आप भी बहुत ऊंचे आदमी हैं, लेकिन मैं किया मेरी बिसात, जिसके सर पर कहते 5 जूते रसीद करके निकल जाऊं। अब चलो यहां से। फरीदी इसका बाजू पकड़कर दरवाजे की तरफ धकेलता हुआ बोला। थोड़े ही फासले पर कलारा ने उनका रास्ता रोक लिया। ओहो, आप भी हैं यहां? इसने फरीदी को मुखातिब करके इस अचानक मुलाकात पर इजहार मसरत किया। फरीदी भी चंद रस्मी जुमले अदा करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। हमीद का बाजू अब भी इसकी गिरफ्त में था। वो इमारत से निकल आए। अपने बदअखलाकी का सबूत दिया है। हमीद बुड़बुड़ाया। चलते रहो खामोशी से। अगर वो हस्पताल से गायब हो गई है तो इसकी जिंदगी खतरे में होगी। जहन्नम में जाए। लेकिन तुम तो निकलो इस जन्नत से। आप अंदर आए कैसे? नासिर मिर्ज़ा की इजाज़त से। मुझसे तो साफ इनकार कर दिया था। कह रहा था कि बिन बुलाए मेहमान इसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त होते हैं। आखिर ये किस किस्म के ख़ानदानी ताल्लुकात हैं? मुजरिम और कानून के मुहाफ़िज़ एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। नई इत्तला है, हमीद तंजिया लहजे में बोला। दोनों ही आदम की औलाद हैं। बेटे, तो क्या आपका ख्याल है कि आर्थर के केस में मिर्ज़ा ही का हाथ है? हो सकता है। क्या ये मुमकिन नहीं है कि इसे दोनों का छुपा कर मिलना पसंद न रहा हो, और हो सकता है कि खुद वही रोज़ा की गुमशुदगी का भी जिम्मेदार हो? दोनों लिंकन में आ बैठे। हमीद किसी सोच में डूब गया था। जब लिंकन चहार दीवारी के फाटक से निकली, वो चौंक कर बोला, क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप ही ने इसे गायब कर दिया हो? बहुत दूर की कौड़ी लाए हो, लेकिन गलत। फरीदी ने विंड स्क्रीन पर नज़र जमाए हुए कहा। मैंने सिर्फ इतना किया है कि तुम्हारी तरह गाफिल नहीं रहा। क्या मतलब? वो जहां भी ले जाई गई होगी कुछ देर बाद मुझे इसका इल्म हो जाएगा। ओह, तो आप उसकी निगरानी कराते रहे हैं? यकीनन। मुझे सोचना पड़ा था कि इसने खुदकुशी की कोशिश क्यों की। अक्सर मोहब्बत करने वाले महबूब की मौत नहीं बर्दाश्त कर सकते। कहानियां हैं फर्जंद। जब एक माँ जवान बेटे की मौत के बाद भी जिंदा रह सकती है तो ये सब कुछ कतई बकवास है। बातेरे वाकयात हैं। मौत के वाकयात होंगे वो सिर्फ जुदाई के किस्से होते हैं। अगर तुम्हारी महबूबा तुमसे जुदा होकर किसी और के पहलू में पहुंच जाए तो तुम यकीनन खुदकुशी कर लोगे। लेकिन वो मोहब्बत नहीं होगी। वो तो ठेस लगेगी तुम्हारी मर्दांगी को, तुम्हारी अना मजरू होगी और गैरत खुदकुशी पर आमादा कर देगी। मैं इस वक्त लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूं। तो फिर ऐसी गैर साइंटिफिक बकवास न करो। मुझे नींद आ रही है। फरीदी कुछ ना बोला। लिंकन सुनसान सड़कों पर तेज रफ्तारी के मुजाहरे करती हुई बिलाखिर एक इमारत के सामने आकर रुकी और फरीदी ने हमीद को झंझोड़ा। आप अपनी ख्वाबगाह में तशरीफ ले जाइए। हमीद ने चौंक कर भराई हुई आवाज में कहा। मैं गाड़ी ही में सो जाऊंगा। आंखें खोलो, हम घर में नहीं हैं। दूध पीते बच्चे। हमीद बौखला कर सीधा हो गया। चंद लम्हे आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखता रहा। फिर हैरत ज़दा अंदाज में बोला, वाकई में बहुत अहमक हूं। चलो, एतराफ़ तो किया तुमने। उतरो। अब सिर्फ ये बता दीजिए कि आपने मेरी कॉल कैसे टेप की थी, जबकि मैंने तो लाइन का प्लग इंस्ट्रूमेंट से निकाल दिया था। बहुत देर से चौंके वो इसे नीचे उतरने के लिए धकेलता हुआ बोला, सारी ही बातें बताने की नहीं हुआ करती। अगर ऐसा ना करूं तो तुम पता नहीं कब और कहां गर्क हो जाओ। हमीद बुरा सा मुंह बनाए हुए गाड़ी से उतर गया। सामने वाली इमारत के बरामदे में जाओ, फरीदी कह रहा था। दरवाजे की चौखट में कई घंटियों के पुश बटन हैं जो कि मुख्तलिफ रंगों के हैं। तुम सुर्ख रंग वाले बटन को 3 बार दबाकर इंतजार करना। मुझे वहां छोड़कर खिसक तो नहीं जाएंगे।
अंदर से कोई आएगा, तुम सिर्फ हॉट स्टोन कहकर वापस चले आना। अगर वो कोई कुत्ता हुआ और उसने मेरी टांग पकड़ ली तो क्या होगा? वक्त ना ज़ाय करो। हमीद इमारत के बरामदे में आया। सुर्ख रंग के पुश बटन को 3 बार इस्तेमाल करने के बाद अंदर से किसी की आमद का मुंतज़िर रहा। जल्द ही दरवाज़ा खुला और हमीद ने दरवाज़ा खोलने वाले की शक्ल देखे बगैर भराई हुई आवाज़ में कहा, हॉट स्टोन, और वापसी के लिए मुड़ गया। गाड़ी पर बैठते वक्त इसने महसूस किया कि कोई और भी पिछली सीट पर बैठा है, लेकिन न जाने क्यों इसका रवैया कुछ ऐसा हो रहा था कि जैसे मुड़कर देखेगा तो पत्थर का होकर रह जाएगा। फरीदी ने इंजन स्टार्ट करते हुए ऊंची आवाज में कहा, क्या खबर है? पिछली सीट से खनकारने की आवाज आई, लेकिन हमीद ने अब भी मुड़कर ना देखा। जनाब आली, पिछली सीट से किसी ने कहना शुरू किया। उन्होंने निगरान नर्स को भारी रिश्वत दी थी, लिहाजा नर्स की मदद से वो इसे निकाल ले गए। और जनाब आली, उसी इमारत में जिसकी निगरानी हम 2 माह से करते रहे हैं। ओ, फरीदी के मुंह से बेसाख्ता निकला। कार की रफ्तार तेज नहीं थी। हमीद ने बेचैनी से पहलू बदला। फिलहाल इस इमारत में कितने आदमी हैं? फरीदी ने पूछा। 3 मर्द लड़की समेत 4। कोई औरत भी है? जी हां, 2 औरतें, 1 मर्द और वो लड़की। गैर मुल्की हैं? औरतें गैर मुल्की हैं, मर्द देसी। लेकिन जनाब आली, वो पूरा देव है। ऐसी जसामत का आदमी आज तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। मेरा ख्याल है कि वो उनकी रखवाली के लिए वहां रखा गया है। और हो, कहो, खामोश क्यों हो गए? वो किसी शिकारी कुत्ते की सी कुव्वत शामा रखता है। तुमने पहले ऐसे किसी आदमी की इत्तला नहीं दी? फरीदी बोला। जनाब आली, वो पिछली दोपहर को पहली बार वहां देखा गया है। क्या ख्याल है, लड़की की जिंदगी खतरे में है? फरीदी ने सवाल किया। कुछ कहा नहीं जा सकता जनाब आली। लड़की के वहां पहुंचने के बाद से हम अपने बनाए हुए रास्ते के जरिया इमारत तक नहीं पहुंच सके। क्यों? वही देवजात जनाब, इस तरह इमारत से बाहर आता था जैसे हमारी वो सूंघ ली हो। चारों तरफ आंखें हैं। फरीदी चंद लम्हे खामोश रहकर बोला, सुबह होने से पहले इस लड़की को इमारत से बरामद करना है। पिछली नशिस्त पर बैठा हुआ आदमी कुछ ना बोला। शायद हमीद की नींद गायब हो चुकी थी, लेकिन इसने अपने होंठ सख्ती से भींच रखे थे। गालिबन ज़बान हिलाने की जरूरत नहीं महसूस कर रहा था। होकर रहेगा जो कुछ होना है, इसकी बाला से। कुछ देर बाद फरीदी ने इसे ठोका। क्या सो गए हो? जी नहीं, सुबह 7 बजे सोकर क्या करूंगा? हमीद ने खुश्क लहजे में कहा। वैसे क्या आपको यकीन है कि इन लोगों ने इसे जिंदा छोड़ा होगा? अगर वो इसे किसी राज की पर्दापोशी की खातिर ले गए हैं तो मेरी दानिस्त में इसका इम्कान नहीं। सब कुछ मुमकिन है। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि आपकी गफलत पर उसकी मौत की जिम्मेदारी होगी। मैं भी यही सोच रहा हूं। सोचते ही रहेंगे, यह कुछ करने का भी इरादा है? शायद तुम फिर ऊँघने लगे। बाईं जानिब मोड़िए जनाब, पिछली सीट से आवाज आई। फरीदी ने गाड़ी बाईं तरफ मोड़ दी। हम कहाँ जा रहे हैं? हमीद ने पूछा। फिर ऊँघने लगे तुम? क्या रोज़ा की लाश बरामद नहीं करोगे इस इमारत से? हमीद भुना कर रह गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। किसी लड़की के बारे में ऐसा बेदर्दाना इजहार ख्याल इसे अच्छा नहीं लगा था। हल्के के थाने में अस्पताल से इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है या नहीं? फरीदी ने पिछली सीट पर बैठे हुए अजनबी को मुखातिब किया। जी हां, आपकी तशरीफ आवरी से सिर्फ 10 मिनट पहले मुझे इत्तला मिली थी कि नासिर मिर्जा ने अस्पताल से इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ठीक, मैं अभी इसकी तस्दीक किए लेता हूं, फरीदी ने कहा और एक दवा फरोश की दुकान के सामने गाड़ी रोक दी। आसपास के छोटे मोटे चाय खाने खोल गए थे और मेडिकल स्टोर तो सारी रात बंद नहीं होते थे। इसने मेडिकल स्टोर से फ़ोन करके मुताल्लिका थाने से नासिर मिर्जा की रिपोर्ट के बारे में तस्दीक की और फिर गाड़ी में आ बैठा। इस बार गाड़ी देर तक नहीं चलती रही थी। मूडल कॉलोनी की सड़क पर इसे रोका गया। यहीं रुकना मुनासिब था, पिछली सीट पर बैठे हुए अजनबी ने कहा। फरीदी ने फिर हमीद को टहौका दिया। उतरो। गाड़ी वहीं छोड़कर वो एक तरफ चल पड़े। अजनबी आगे चल रहा था। यहां हमीद ने इस अजनबी की शक्ल अच्छी तरह देखी, लेकिन ये याद न आया कि पहले भी कभी इसे देखा हो। इसने सोचा मुमकिन है ब्लैक फोर्स का कोई मेंबर हो। वो कॉलोनी के इस हिस्से में पहुंची जहां इमारतें एक दूसरी से किसी कदर फासले पर वाक़ थीं और बहुत ज़्यादा दौलतमंद लोग उनमें आबाद थे। अब उधर बाईं जानिब से निकल चलिए जनाब, अजनबी बोला।
मैं आपको इसी तरफ ले चलूंगा जिधर से इमारत में दाखिला मुमकिन है। क्या तुमने अल्बर्टो के अंदर से कोई रास्ता बनाया है? जी हाँ, अल्बर्टो नाम के इस क्लब से हमीद भी वाकिफ था, लेकिन कभी वहां जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। वो इसके गेट में दाखिल हो ही रहे थे कि फरीदी ने दोनों हाथ फैलाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पीछे रहो, रोशनी से बचकर। वो एक तरफ तारीकी में सरक गए। क्या बात है? हमीद ने किसी कदर झुंझलाहट के साथ पूछा। इसके जहन पर फिर नींद का गलबा हुआ था। क्लारा डील? कहाँ? बरामदे में। हमसे पहले ही पहुंच गए ये लोग यहाँ। तो क्या? गैर जरूरी बातें नहीं। फरीदी आहिस्ता से गुर्रा, फिर हमराही के शाने पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हें यकीन है कि खुद तुम्हारा ताक़ुब नहीं किया जाता रहा? हम पूरी तरह मोहतात रहे हैं जनाब आली, और इस वक्त भी मैंने खास तौर पर इस तरफ ध्यान दिया था। हाँ, मुझे इल्म है, इस वक्त हमारा ताक़ुब नहीं किया गया। फरीदी बोला, जरूरत ही ना समझी गई होगी ताक़ुब की। हमीद ने नींद से बचाव के लिए बार बार आंखें फाड़ती हुए कहा, क्या वो नासिर मिर्जा की काल नहीं टेप कर सकते? जब उन्होंने सुना होगा कि हमें रोज़ा की गुमशुदगी की इत्तिला मिल गई है तो यकीनन समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे? मुझे सोचने दीजिए। नींद से सारा मवाद गुडमुड हो गया। हाँ, तो वो समझ गए होंगे कि हम इस इत्तिला पर किधर का रुख करेंगे, और अगर नासिर मिर्जा बजात खुद उन हरकात की पुश्त पर है तो फिर काम और ज्यादा आसान हो जाता है। खारिज अज बहस तो नहीं है वो भी। फरीदी पुरतफक्कुर लहजे में बोला, लेकिन यहां कब तक खड़े रहेंगे? हमीद ने कहा, कहिए तो मैं अंदर जाकर हालात का जायजा लूं। मेरा रेडीमेड मेकअप हर वक्त जेब में पड़ा रहता है। ठहरो, फरीदी ने कहा और हमराही की तरफ देखकर बोला, अब तुम ये बताओ अल्बर्टो की इमारत से हम किस तरह वहां तक पहुंच सकेंगे? ल्यूट्री वाली राहदारी का इख्तिताम एक दरवाजे पर होता है जो इमारत की पुश्त पर वाक़े है। दरवाजे के करीब ही बाहर जीने हैं जो अल्बर्टो की छत पर जाते हैं। 7वां जीना दूसरी इमारत की चहार दीवारी ही के लेवल पर है, और चहार दीवारी का इससे फासला 1 गज से ज्यादा ना होगा। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर फरीदी ने हमीद के शाने पर हाथ रखकर कहा, तुम अंदर जाओ और इसे बातों में उलझाने की कोशिश करो। अल्बर्टो के हाल में खासी रौनक थी। फ्लोर शो हो रहा था। बैक वक्त 3 लड़कियां मेजों के दरमियान थिरकती फिर रही थीं। हमीद ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। क्लारा डील एक मेज पर बैठी थी। इसका बाप कहीं ना दिखाई दिया। हमीद इस मेज की जानिब बढ़ता रहा। दफतन क्लारा से नजरें टकरा गईं और लड़की का मुंह हैरत से खुला रह गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी, इसने भराई हुई आवाज में कहा, और हमीद मुस्कुराता हुआ इसके मुकाबिल बैठ गया, और अब वो नीम व आंखों से इसे दीवाना वार देखे जा रहा था। तुम यहां? वो है क्लाई। इसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। ऐसा मालूम होता था जैसे बहुत ज्यादा डर गई हो। अगर कोई लड़की पसंद आ जाए तो मैं कब्रिस्तान में भी पाया जा सकता हूं। क्या मतलब? अब मतलब भी मैं ही समझाऊं? मैं समझी। दफतन इसने गुस्सीले लहजे में कहा, हमारी निगरानी की जा रही है शायद। क्या कहते हो तुम लोग? लोग नहीं, सिर्फ मैं, और मैं तुम्हें इस साल की खूबसूरत तरीन लड़की समझता हूं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे डैडी तो आसपास मौजूद नहीं। क्यों? उनसे डर मालूम होता है। तुम नशे में तो नहीं हो? मेरा चीफ कह रहा था कि तुम उर्दू पढ़ना चाहती हो। हाँ, तो फिर मैं तुम्हें मीर तकी मीर से मेरा जी तक सब कुछ पढ़ा दूंगा। ये कौन है? उर्दू के 2 बहुत बड़े शायर। फजूल बातें ना करो। तुम्हें हम पर चैंपियन के कत्ल के सिलसिले में शुबा है। क्या पुलिस वालों को इसका हक हासिल नहीं कि वो किसी को चा सकें? ओ, इसने हैरत ज़दा अंदाज में होंठ से कूड़े और फिर हंस पड़ी। तुम हंस रही हो? हमीद का लहजा दर्दनाक था। तो फिर क्या मुझे रोना चाहिए? हमारे यहाँ के पुलिस वाले तो अपनी बीवियों तक को चाहने की जुर्रत नहीं कर सकते। क्यों? पुलिस वाले ही जाने में भला क्या बता सकोगी? इसने बड़ी सादगी से जवाब दिया, और हमीद ने इसका दिल रखने के लिए इतने जोर से कहकहा लगाया कि आसपास के लोग चौंक पड़े। क्या इस शहर में कोई सुकून की जगह नहीं है? क्लारा ने कुछ देर बाद कहा, सुकून ही सुकून। हमीद इसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। मैं ऐसी जगहों से भी वाकिफ हूं जहां सुकून ही सुकून है। क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? अपने डैडी से इजाजत ले लो। हम मशरकी लोग वालिदैन की मर्जी को मुकद्दम जानने के आदी हैं। डोंट बी सिली। मैं बच्ची नहीं हूं। अच्छा, हमीद ने कहा,
और वेटर को इशारे से तलब करके सैंडविचेस मंगवाए। क्या तुम भूखे हो? क्लारा ने पूछा। पैदाइशी भूखा हूं। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ रोजे से थी। बहुत मजहबी थी तुम्हारी माँ। हमारे यहाँ हर माँ मजहबी होती है, खा मजहब के बारे में कुछ भी न जानती हो। फरीदी और उसका हमराही दीवार से लगे खड़े थे। इस हिस्से में गहरी तारीकी थी। फरीदी ने इससे कहा, अब तुम जाओ और ल्यूवट्री के सिरे वाले दरवाजे का जायजा लेकर मुझे बताओ कि वो मुकफ्फल तो नहीं है। बहुत बेहतर जनाब, इसने कहा और आहिस्तगी से आगे बढ़ गया। फरीदी वहीं दीवार से लगा खड़ा रहा। दफतन पुश्त से किसी ने इस पर छलांग लगाई और वो लपक कर एक तरफ हट गया। छलांग लगाने वाला जमीन पर आ गिरा। बिजली की सी सूरत के साथ फरीदी ने बगली होलस्टर से रिवाल्वर खींचा और हमला आवर के सर पर रखकर आहिस्ता से बोला, रिवाल्वर बे आवाज है। रिवाल्वर की नाल हमला आवर की गर्दन से जा लगी थी। हमला आवर बेहिस व हरकत पड़ा रहा। जल्द ही फरीदी को किसी गैर फितरीपन का एहसास हुआ। इसने बाईं हाथ से इसकी पेशानी छुई ही थी कि चौंक पड़ा। उंगलियां घनीरे बालों से उलझी थीं। वो औरत निकली और गालिबन बेहोश थी। इतने में फरीदी का हमराही भी वापस आ गया। अब कहाँ हैं जनाब? इसने दीवार के करीब पहुंचकर आहिस्ता से कहा। इस तरफ, फरीदी बोला और पेंसिल टार्च की रोशनी औरत के चेहरे पर डाली। ओ, हमराही की जुबान से बेइख्तियार निकला, ये तो वही है जिसके लिए हम। तुम्हें यकीन है? फरीदी ने टार्च कुछ और करीब करते हुए कहा। रोशनी पूरी तरह बेहोश औरत के चेहरे पर पड़ रही थी। जी हां, ये वही है जिसे अस्पताल से अगवा किया गया था। फरीदी ने तवील सांस लेकर टार्च बुझा दी और मुड़कर अंधेरे में आंखें फाड़ने लगा। फिर इसने हमराही को वहीं छोड़ा था और खुद इसी समत बढ़ गया था जिधर से इस औरत ने इस पर छलांग लगाई थी। कुछ दूर चलकर रुक गया। वो इस इमारत के फाटक पर था जिसके बारे में इसे इत्तिला मिली थी कि रोजा वहीं ले जाई गई थी। सलाखोंदार फाटक बंद था और कंपाउंड तारीक पड़ी थी। किसी खिड़की या रोशनदान में भी रोशनी नहीं दिखाई देती थी। चंद लम्हे वहां रुककर वो फिर इसी तरफ पलट आया जहां उन दोनों को छोड़ा था। अब इसे गाड़ी तक ले चलने की फिक्र करूं। अब ये होश में है जनाब, लेकिन खाइफ मालूम होती है। हमराही ने सहारा देकर रोजा को जमीन से उठाया। इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। फरीदी ने भी इसका एक बाजू पकड़ लिया। ऐसे रास्तों से चलो जो ज्यादा रोशन ना हो, फरीदी ने कहा। फिर रुक कर बोला, नहीं ये नहीं चल सकेगी। कुंजी लो और गाड़ी यहीं ले आओ। गाड़ी वहां तक पहुंचने में 3-4 मिनट से ज्यादा सिर्फ नहीं हुए थे और इस दौरान में फरीदी रोजा को अपने बाजू में संभाले रहा था। इस इमारत की निगरानी बदस्तूर जारी रहेगी, इसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए हमराही से कहा। फिर हमराही वहीं रह गया था और गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ गई थी। रोजा फरीदी के बराबर अगली ही सीट पर नींद दराज थी। क्या तुम जाग रही हो? फरीदी ने कुछ देर बाद इसे मुखातिब किया। मैं जाग रही हूं, इसने नहीफ सी आवाज में जवाब दिया। तुमने मुझ पर हमला क्यों किया था? हमला नहीं, मैं बेतहाशा दौड़ रही थी। अंधेरे में तुमसे टकरा गई। क्या तुम दौड़ सकती हो? क्यों नहीं, लेकिन डॉक्टर तो तुम्हारी नकाहत की हैरत अंगेज कहानी सुनाते हैं। डॉक्टर? मैं नहीं समझी। तुम्हारी जान बचाई गई थी, लेकिन डॉक्टर का ख्याल था कि तुम्हें कम अज कम 15 दिन तक बिस्तर से हिलना भी नहीं चाहिए। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या तुम रोजा अपसी डाउन नहीं हो? मैं रोजा अपसी डाउन नहीं हूं। फिर तुम कौन हो? मैं कौन हूं? हाँ, मुझे सोचना चाहिए कि मैं कौन हूं। तुम पर एकदम खुदकुशी का भी इल्जाम है, इसलिए जो कुछ भी कहो सोच समझ कर कहो। और ये कि तुम इस वक्त एक पुलिस ऑफिसर से हम कलाम हो। मेरी समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बातें। क्या तुम्हें नासिर मिर्जा के पास पहुंचा दिया जाए? नासिर मिर्जा? नासिर मिर्जा क्या चीज है? क्या तुम मिस्टर नासिर मिर्जा की मेहमान नहीं थी? मेरे खुदा, मैं किसी नासिर मिर्जा को नहीं जानती। खूब, फरीदी मुस्कुराया। तो तुम आर्थर चैंपियन को भी न जानती होगी जिसकी लाश देखकर तुमने खुदकुशी की ठानी थी। तुम पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो। ये सारे नाम मेरे लिए नए हैं। अच्छी बात है, तुम यही बता दो कि इस वक्त कहां से आई थी। इसके अलावा और कुछ नहीं जानती कि इस वक्त में तेजी से दौड़ रही थी, तुमसे टकरा गई थी। फिर आगाह करता हूं कि तुम एक पुलिस ऑफिसर से मुखातिब हो। मुझे डराने की कोशिश न करो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। ये क्या बात हुई? हर औरत के लिए एक मर्द जरूरी है।
حالانکہ میں نے ابھی تک تمہاری شکل نہیں دیکھی، لیکن تم رحم دل آدمی معلوم ہوتے ہو۔ لیکن ہر مرد کے لیے عورت ضروری نہیں ہے، پھر وہ خود بھی عورت ہی ہوگا۔ لڑکی نے قہقہا لگایا۔ اچھی بات ہے، فریدی نے کہا اور نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ دفتن عقب نما آئینے پر نظر پڑی، پیچھے کئی گاڑیوں کے ہیڈ لیمپس نظر آ رہے تھے، اور پھر اس نے پولیس کی گاڑی کا سائرن بھی سنا۔ دونوں ہونٹ سختی سے بھینچ کر اس نے سر کو جنبش دی اور ایکسلریٹر پر دباؤ کم کر دیا۔ اب دیکھنا تمہاری وجہ سے کن دشواریوں میں پڑتا ہوں۔ میں اسے مرد ہی نہیں سمجھتی جو کسی عورت کے لیے دشواری میں پڑنے سے ڈرتا ہو۔ میں ایسا مرد نہیں ہوں جس کے لیے عورت ضروری ہو، لیکن تم ایک رحم دل آدمی ضرور ہو۔ فریدی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سائرن بجاتی ہوئی پولیس کار اس کی گاڑی سے آگے نکل کر کسی قدر ترچھی ہوئی اور اس کے بریک چرچرائے۔ اگر فریدی نے بھی پورے بریک نہ لگائے ہوتے تو ٹکراؤ یقینی تھا۔ دونوں گاڑیوں کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ 2 فٹ رہا ہوگا۔ پھر 2 گاڑیاں اور بھی لنکن کی دونوں جانب آ رکیں۔ فریدی نے اپنی گاڑی کا انجن بند کر دیا۔ اگلی گاڑی میں 2 بہت زیادہ جانے پہچانے چہرے نظر آئے تھے۔ ان میں سے ایک خود محکمے کا آئی جی تھا اور دوسرا ناصر مرزا۔ جی ہاں، وہ بھی موجود ہے گاڑی میں، ناصر مرزا کی آواز سنائی دی۔ ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ لنکن کے قریب بھی پہنچ گئے، لیکن فریدی جوں کا توں بیٹھا رہا۔ ویسے اس نے گاڑی کی لائٹ پہلے ہی روشن کر دی تھی۔ ملاحظہ فرمائیے، ناصر مرزا نے ڈی آئی جی کو مخاطب کر کے طنزیہ لہجے میں کہا۔ لنکن کی دونوں جانب والی گاڑیوں میں مسلح پولیس کے جوان نظر آ رہے تھے۔ فریدی نے کنکھیوں سے دونوں جانب دیکھا اور پھر ناصر مرزا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ کیا قصہ ہے انسپکٹر؟ ڈی آئی جی غرا۔ وہ ہمیشہ فریدی کو انسپکٹر ہی کہہ کر مخاطب کرتا تھا اور اس کے لہجے میں احساس کمتری کی جھلکیاں ملتی تھیں۔ میں اس وقت اسپیشل ڈیوٹی پر ہوں، برا کرم گاڑی سامنے سے ہٹوا دیجیے، فریدی نے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ لیکن ڈی آئی جی کا پارا پہلے ہی سے چڑھا ہوا تھا، کیونکہ فریدی نے گاڑی سے اتر کر تزیم نہ دی تھی۔ فضول باتیں نہیں، ڈی آئی جی نے تلخ لہجے میں کہا۔ تم اس وقت ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے ہو۔ کس سلسلے میں جناب؟ فریدی کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ فی الحال یہ اپنے متعلق کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ روزہ، اب تم محفوظ ہو، نیچے اتر آؤ، ناصر مرزا بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ لیکن اس نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اسے گاڑی میں بٹھاؤ، ڈی آئی جی نے پولیس کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فریدی سے کہا۔ میں پھر گوش گزار کروں گا کہ میں اس وقت اسپیشل ڈیوٹی پر ہوں، اور یہ مجھے خاص حالات میں محکمہ خارجہ کی طرف سے تفویض ہوتی ہے۔ تمہارا کوئی ہتھ کنڈا کام نہیں آئے گا، ناصر مرزا بول پڑا۔ مسٹر مرزا، فریدی کے لہجے میں دھمکی تھی۔ دفتن ناصر مرزا نے روزہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نیچے اتر آؤ۔ ناصر مرزا، فریدی غرا اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اسے اس زور سے دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ ڈی آئی جی کی غضب ناکی بلاخر پھٹ پڑی۔ احمد کمال فریدی، میں تمہیں معطل کرتا ہوں، وہ دھاڑا۔ ہر چند کہ میں اس وقت صدر مملکت کے علاوہ کسی اور کو جواب دے نہیں، پھر بھی گوش گزار کروں گا کہ اب اتھارٹی TC-13 کے بارے میں سیکریٹری برائے امور خارجہ سے ضرور معلومات حاصل کر لیں۔ اس نے بڑی پھرتی سے اپنی گاڑی ریورس گیئر میں ڈالی تھی اور گاڑی بہت تیزی سے پیچھے ہٹتی چلی گئی تھی۔ اتفاق ہی تھا کہ سڑک سنسان پڑی تھی اور وہ اسی رفتار سے راہ تک آ گئی تھی۔ فریدی نے تیزی سے اسے بائیں جانب موڑ دیا۔ اب لنکن تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ روزہ منمنائی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہاری وجہ سے دشواریوں سے 2-4 ہونا پڑے گا۔ وہ لوگ کون تھے اور مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ جس نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا وہ کون تھا؟ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میرے لیے اجنبی تھا؟ لیکن گفتگو اس طرح کر رہا تھا جیسے خاصی جان پہچان ہو۔ فریدی کے ہونٹ پھر سختی سے بھینچ گئے تھے۔ اس نے ڈیش بورڈ کے ایک خانے سے وائرلیس ٹیلی فون کا ریسیور نکالا اور اسے کان سے لگا لیا اور ماؤتھ پیس میں بولا، ہیلو فلائنگ سکواڈن آپریشن ہیلو۔ کوئی بولا، ہو از دیٹ؟ فریدی اسپیکنگ ٹو ڈی آئی جی پلیز۔ چند لمحوں بعد ڈی آئی جی کی غصیلی آواز سنائی دی۔ فریدی نے ماؤتھ پیس میں کہا، میرے تعاقب کا سلسلہ ختم کیا جائے ورنہ آپ دشواری میں پڑیں گے۔ آخری بار استدعا کر رہا ہوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کبھی کوئی غیر قانونی قدم نہیں اٹھاتا۔ ڈی آئی جی کی آواز آئی۔
मैंने चाहा था कि ये मामला मुझसे आगे ना बढ़े, लेकिन क्या तुम नासिर मिर्जा से वाकिफ नहीं? पुश्त हा पुश्त से वाकिफियत चली आ रही है, आप उसकी फिक्र न करें। मैं एक बार फिर अब से कह रहा हूं कि अथॉरिटी TC-13 के मुतालिक अब वजारत खारजा से दरियाफ्त फरमा लें। हर चंद कि ये ज़रूरी नहीं है कि अब मेरी कारकर्दगी के इस पहलू से भी आगाह हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी ऑफिसर के दिल में मेरी तरफ से मलाल पैदा हो। बस इससे ज़्यादा नहीं कहना मुझे। इस वक्त की आवेजिश पर अफसोस है। फरीदी ने स्विच ऑफ करके रिसीवर फिर डैशबोर्ड के खाने में रख दिया। लिंकन यकसा रफ्तार से भागी जा रही थी और उसका रुख ईगल बीच की तरफ था। अकबी आईने पर बार बार फरीदी की नज़र जाती थी। कुछ देर बाद वो साहली इलाके में दाखिल हो गए। हम कहाँ जा रहे हैं? रोज़ा ने पूछा। वो मुसलसल फरीदी के चेहरे पर नज़र जमाए हुए थी। तुम्हारे लिए एक छत फराहम करनी है। जाहिर है कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। शुक्रिया, तुमने मुझे समझने की कोशिश तो की, लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि तुम्हारा कोई नहीं है। मुझे खुद परेशानी है, पता नहीं कब से अपना नाम याद करने की कोशिश कर रही हूं। छोड़ो, आज से तुम्हारा नाम कोर्नेलिया है। बहुत अच्छा नाम है। हाँ, ये नाम मेरे लिए मुनासिब रहेगा। लिंकन ईगल बीच में पहुंचकर फरीदी के हट के सामने रुकी। ओहो, यह कौन है? इसकी ज़बान से बेइख्तियार निकला, क्योंकि सारी खिड़कियां रोशन नजर आ रही थीं। तुम यहीं ठहरो, इसने रोज़ा से कहा और खुद गाड़ी से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद अंदर कदमों की चाप गूंजी और साथ ही किसी ने पूछा, कौन है? ओ, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुला और अरे आप! ये हमीद की आवाज़ थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ, वो भी है। कौन? क्लारा। क्लारा। हमीद पर बदहवासी तारी थी। क्या मतलब? वो मेरे साथ यहाँ चली आई है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? आपने कहा था कि इसे बातों में उलझाओ और वो इस तरह उलझी कि यहाँ तक चली आई। लेकिन अब यहाँ इस वक्त कैसे? मेरी गाड़ी में रोज़ा है। ओ, अब तो आपको कोई एतराज़ ना होना चाहिए। बकवास मत करो, फरीदी ने कहा और फिर चंद लम्हों के लिए हमीद ने यही महसूस किया कि वो ज़हनी तौर पर गैर हाजिर हो गया हो। इसके बाद वो इस तरह चौंका था जैसे गुनूदगी तारी रही हो। उजाला अच्छी तरह फैल गया था। वो हमीद को वहीं छोड़कर लिंकन की तरफ पलटा। रोज़ा इसी तरह बैठी थी। आओ, उतर आओ। देखो ये कितना पुरफज़ा मकाम है। अब तुम कुछ दिन यहीं क़याम करोगी, फरीदी ने कहा। रोज़ा किसी नन्ही सी बच्ची की तरह खुश नजर आ रही थी। वाकई बड़ी खूबसूरत जगह है और तुम भी बहुत खूबसूरत हो। ऐसा दूसरा कोई मर्द तो आज तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। वो दोनों हट के दरवाजे में दाखिल हुए। हमीद पीछे हट गया। ये कौन है? रोज़ा ने बचगाना अंदाज में हमीद के बारे में सवाल किया। खूब, इतनी जल्द भूल गईं? हमीद पुरमानी अंदाज में मुस्कुराया, लेकिन फरीदी ने रोज़ा की आंखों में उलझन के आसार देखे। नहीं, तुम उन्हें नहीं जानती। फरीदी इसका बाजू पकड़कर आगे बढ़ाता हुआ बोला। दूसरे कमरे में क्लारा मौजूद थी। इसकी पलकें नींद से बोझल हो रही थीं, लेकिन रोज़ा पर नज़र पड़ते ही वो इस तरह चौंकी जैसे इसकी मुहर्रिक कोई गरजदार आवाज़ हो। ये तो रोज़ा है, वो बौखलाए हुए अंदाज में बोली। क्यों? क्या तुम्हें इसे यहाँ देखकर हैरत हुई है? फरीदी ने इसे टटोलने वाली नज़रों से देखते हुए पूछा। नहीं तो मैं कोर्नेलिया हूँ, रोज़ा गुस्सीले लहजे में बोली। क्लारा ने हमीद की तरफ देखा, लेकिन न जाने क्यों हमीद उसकी तरफ मुतवज्जे न हुआ। इस पर भी किसी किस्म की बौखलाहट तारी थी। अब तुम आराम करो, फरीदी ने रोज़ा से कहा। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं।